Good evening, sir. Yes, Kriti, good evening. Kriti Ranjan, good evening. So, have you gone through those PDFs? Yeah, sir. I have gone through the two PDFs. I have left out three PDFs, sir. Good I'll Okay. evening, go sir. Good through evening, it. Shivangi. What is your feedback, Kriti, on those PDFs? Sir, Are you able to understand a bit? yeah, I have gone through your videos, sir, in YouTube channel. Correct. Yeah, it was helpful, sir, for me. Okay. So what you can do, you can finish all those 5 PDFs with the help of those videos in coming days, and Sir, keep. I guess only three videos have been uploaded, sir. Two more are left. So two more means it's not there. So initially I was Yeah. not recording. I was just taking my classes. Then I started Oh, recording and uploading. So whatever you can take help of videos and you can understand, it's fine. Note down all your doubts and queries, and then we will connect one day, myself and you, and then I okay, will sir. take you through all the gaps, all the doubts, and I will clear everything. Okay. Sure, sir. Thank you, sir. Okay, Okay. sir. So now Shivangi also has come. I think Ananya is not going to join today. She has gone to a doctor with her grandmom. Now this is our day 6, I believe. Let me just check. It is day 6. I think it is day 6 only. What you tell Shivangi? Day 6 or day 5? I hope day 6 is there. It is day 6. So till now, what we have discussed. So first we discussed about a little bit of France, how it is, important cities, important monuments, important words, right? Then we started learning the alphabets of French language. We also learned different words which I can form with the help of A to Z French alphabet. Then we learned, I think, uh, days of the week. We learned months of the year, and what else? We learned Introduction, sir. introduction. We learned how to greet in French language. So we have done many basics and we have learned so many phrases in French. With the help of those phrases, we can easily interact with someone. At least if we are in a country where French has been spoken, at least I can share my things, I can ask what I need. So that much we have done. And now, today, in day 6, we are going to discuss. Sir, your network is lagging today also. My network is not helping. Okay. No, sir, it's fine. So for Kriti, it is fine. So for Kriti, it is fine. And for me, also, it is fine. Then Shivangi has to check. Okay. I think I have to check, Ha sir. ha. So take the help of a screen also. Take the help of my audio, my voice also, and then try to understand. So today we are going to discuss l'accent français. L'accent français means accents of French language. Now, Kriti and Shivangi, whenever you will go through French sentence or French words, you will find that there are some accents either on top of it, or top of the letter, or at the bottom of the letter. And sometimes we get confused that if accent is there, how we have to pronounce, how we have to treat that particular word. So today we will discuss this. uh, so there are accent, five accents in French language. So if you can see the screen, I have got a picture. So it's a face, and with the help of this face, you can remember all the accents. So the top one, the top two, they are the eyebrows, and the first one, which is going from left to right, it is tilted like this from left to right it is going, that is called ague. Ague. And which is going from right to left like this slant is there,
that is called grave. Ague, grave. And this grave is also being used in English. We use it as grave. मतलब सीरियस ग्रेव टॉपिक बोलते हैं या फिर बहुत ही सीरियस मैटर है, एंड इसी ग्रेव से बना है ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान. सो दिस इज द फ्रेंच वर्ड. सो एग्यू, ग्राव. नीचे जो दो आंखें बनी हुई हैं, दोस आईज, इट इज कॉल्ड ट्रेमा. ट्रेमा. एंड बिकॉज कृति है ज्वाइंड रिसेंटली, आई विल टेल यू. कृति, हाँ, टेल मी. तो ये जो प्रेमा के ऊपर ई के ऊपर जो वो है वो आईगू है. वो एग्यू है. मतलब नाउ यू कैन रिलेट, इट इज एग्यू. सी, लेफ्ट से राइट की तरफ झुका हुआ है तो एग्यू हो गया, राइट से लेफ्ट में झुका हुआ है देन ग्राव हो गया. फाइन. सो ट्रेमा तो के जो दिसंबर में हुआ. व्हाट व्हाट सर जो दिसंबर आपने पढ़ाया था उसमें ई पे भी है और एक और ई पे है, तो उसमें आईगू और ग्रेव दोनों ही होगा. अगर अगर ई के ऊपर सपोज एक ही लेटर के ऊपर में दो नहीं हो सकता है, एक लेटर के ऊपर एक ही होगा, बट ये पॉसिबल है कि एक वर्ड में दो ई है, एक पे एग्यू है और एक पे ग्राव है. दैट इज पॉसिबल. बट Okay, sir. एट वन टाइम एक लेटर पे एक ही एक्सेंट आएगा. फाइन. सो एग्यू, ग्राव. ट्रेमा इज टू डॉट्स. जिसके दो आंखें हम देख रहे हैं वो दो डॉट्स होते हैं. देन यू हैव सिरकॉनफ्लेक्स, जो कि टोपी की तरह है, झोपड़ी के छत की तरह है, दैट इज सिरकॉनफ्लेक्स. और लास्ट में जो हुक की तरह निकला हुआ है, हुक है, दैट इज कॉल्ड सेडील. एंड सेडील के ई के ऊपर भी एग्यू है, टू अंडरस्टैंड. सो एग्यू, ग्राव, ट्रेमा, सिरकॉनफ्लेक्स एंड सेडील, ये हमारे 5 एक्सेंट्स हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 5 एक्सेंट्स इन डिटेल. इसको हम बिल्कुल समझ के लेने वाले हैं कि कहां पर क्या लगता है और उसका साउंड क्या आता है. मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज साउंड. क्यों लगता है ये हमको भी नहीं मालूम है, बिकॉज जो फ्रेंच लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं, दोज हु आर द ग्रामर एक्सपर्ट्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, दे हैव डिसाइडेड कि कहां पर एग्यू कहां पर ग्राफ. बट एटलीस्ट विल अंडरस्टैंड कि इसके पीछे कुछ रूल्स अगर है, वी विल कम टू नो, एंड व्हाट साउंड it is creating, that we will come to know. Fine. So this one is the first one. Now coming to the next slide, which will tell you the detail. Now if you can see, the first one is trema, and uske bagal mein likha hua hai sur, a, e and u. यानी स्यूर का मतलब होता है इन फ्रेंच ऊपर. तो ट्रेमा कहां लगता है? ई, आई और यू के ऊपर लगता है. एक एग्जाम्पल दिया हुआ उसके बगल में, ल माइस. माइस का मतलब जो हमारा मेज है, MAIZE, मेज, दैट इज इन फ्रेंच इट इज माइस. फाइन. तो ये एक एग्जाम्पल, हम आगे और समझेंगे डिटेल में. तो ट्रेमा जो दो डॉट वाला जो एक्सेंट है, टू डॉट्स, जैसे आई के ऊपर आपको दिख रहा है, माइस में जो आई है उसके ऊपर में दो डॉट लगे हुए हैं, ये सिर्फ ई, आई और यू के ऊपर लगता है. फाइन. अगला जो है एक्सेंट ग्राव, जो राइट से लेफ्ट की ओर झुकता है, वो कहां लगता है? वो लगता है ए के ऊपर, यू के ऊपर और ई के ऊपर. और आप एक चीज और ध्यान देंगे कि ये सबके सब कहां लगते हैं? ये सबके सब किसी न किसी वोवेल के ऊपर में लगते हैं, एक्सेप्ट द लास्ट वन, सेडील. सेडील जो है वो सी में लगता है, ओनली इन सी, दैट्स इट, नथिंग एल्स. और सेडील के अलावा बाकी जो भी है वो सब वोवेल में ही लगते हैं. तो ट्रेमा हो गया, ग्राव हो गया. ग्राव लगता है ए में, यू में और ई में. ये ब्रैकेट में क्या है इधर? ब्लैक ब्रैकेट में सर ली और MAIS, आई के ऊपर डबल डॉट है सर. हाँ, आई के ऊपर जो डबल डॉट है, दैट इज एक्सेंट ट्रेमा. वही ट्रेमा एक्सेंट है. जहां भी आपको किसी ई के ऊपर, आई के ऊपर, यू के ऊपर दो डॉट दिखेंगे, दैट इज ट्रेमा. अगर राइट से लेफ्ट में जाता हुआ दिखेगा आपको एक एक्सेंट, दैट इज एक्सेंट ग्राव. अगर लेफ्ट से राइट में दिखता है
तो वो एग्यू है, और एग्यू सिर्फ ई के ऊपर आता है. एग्यू कम्स ओनली ऑन ई. एंड सिरकॉनफ्लेक्स जो कि टोपी की तरह है, एक छत की तरह है, रूफ की तरह है, ये आता है ए ई आई ओ यू ऑन ऑल 5 ऑफ देम. ये पांचों के ऊपर में आता है. और लास्ट का जो है सडील, सडील सिर्फ सी पे लगता है. ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि कहां कहां पर. हाँ बताओ कृतिक. सर ये कैसे मतलब इफेक्ट करता है लैंग्वेज को, लाइक हाँ इट हम चेंजेस द वॉइस और ट्यून? ये मेनली इट इज यूज टू चेंज द साउंड. ठीक है, साउंड को चेंज करने के लिए मेनली इस्तेमाल करते हैं, बट कहीं कहीं इसके कारण मीनिंग भी चेंज होता है. At some places you will see that because of this accent the overall meaning changes. Meaning भी change करता है. So we will try to understand all of them one by one. Fine. Okay, so we Okay, have sir. seen that कि 5 accent हैं और किस किस के ऊपर में ये लगते हैं. Now we will try to understand them in detail. So l'accent en français, accent का जो अगर हम हिंदी में सोचेंगे कि क्या बोलें इसको, तो मात्रा बोलते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ हम आ, ई, ऊ ये लगा करके क्या करते हैं, साउंड को चेंज करते हैं. जैसे कि सपोज अगर मौ का साउंड है, मुझे साउंड को चेंज करना है, तो मुझे मात्रा लगाना पड़ेगा. आ लगाएंगे तो माँ हो जाएगा, ऊ लगाएंगे तो मुंह हो जाएगा, ए लगाएंगे तो में हो जाएगा. सिमिलरली दीज एक्सेंट्स आर यूज्ड टू चेंज द साउंड. ठीक है, अब हमने इसका इंग्लिश में लिखा है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि इसका इंग्लिश काउंटर पार्ट क्या होगा. सो एग्यू इज एक्यूट, मतलब छोटा. ग्रेव इज इन इंग्लिश, ग्राव इन फ्रेंच. दोनों का मतलब होता है बड़ा, सीरियस. ग्राव, इट्स अ ग्रेव मैटर. इन इंग्लिश बोलते हैं इट्स अ ग्रेव मैटर, तो बड़ा है ये. तो एक्यूट छोटा, ग्रेव बड़ा. सरकमफ्लेक्स, ये आप समझिए कि इन मैथमेटिक्स वी स्टडी सरकमफरेंस, सर्कल का सरकमफरेंस. तो सरकमफरेंस पूरा घेरता है किसी भी चीज को. अगर हम पूरा गोल घेर देंगे तो बोलेंगे उसको सरकमफरेंस. सरकमफ्लेक्स इज ओनली कि उसको टॉप से घेरना. सरकमफ्लेक्स का मतलब टॉप से उसको कवर करना. दैट इज सरकमफ्लेक्स इन इंग्लिश. सिरकमफ्लेक्स is in French. Trema is the same, and in English we call cedilla, and in French cedille. But nobody is going to ask you English. They will only ask you what we call them in French. So ague, grave, circonflex, trema and cedille. एक बात बोलना रह गया. I was telling Kriti कि in French language टॉ साउंड नहीं है. There is no टॉ. सो जहां भी आप टी देखेंगे, टी की जगह टी को हम बोलते हैं टॉ. फाइन, इट इज ऑलवेज टॉ. वैसे ही डी अगर हम लिखा देखेंगे तो देयर इज नो डॉ साउंड. डमरू, डमरू वाला डॉ साउंड नहीं है. इट्स ऑलवेज दांत वाला द. सो डी इज ऑलवेज द एंड टी इज ऑलवेज टॉ. सो एग्यू, ग्राव, सिरकॉनफ्लेक्स, ट्रेमा एंड सेडील, ये हमारे 5 एक्सेंट हो गए. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल ट्राई टू लर्न इट इन डिटेल. So the first one is called l'accent aigu. L'accent aigu. Aigu क्यों बोलते हैं? Because Kriti has come new. In French, whenever there are 2 words, one is Yes, sir. ending. I've gone through your videos. You've gone through that one. Okay, if- so now you yeah. can understand. Okay, so l'accent. Vowels and consonant. Yes, so whenever consonant is at the last and vowel is at the first in the next word, both will combine. So l'accent aigu. Fine. So the first point is giving the symbol, how it is going to be put. So left to right, left से शुरू होगा और right की तरफ चला जाएगा. That is your aigu. And इसके कारण, because of aigu, the sound will be a. And I have given you 4 examples. First is bebe. Baby को हम बोलते हैं फ्रेंच में bebe. Now one more important thing, अगर यहाँ पर aigu नहीं होता, then the pronunciation would be bubba.
because आ बे से दे अ, ई जो है उसका जो साउंड है दैट इज अ, तो ये होता बब। बट बिकॉज आई थिंक बब साउंड जो फ्रेंच के जिन्होंने बनाया होगा इस लैंग्वेज को, दे मस्ट बी नॉट लाइकिंग कि इसको हम बब पढ़ें, उसको बेबे पढ़ना था उनको, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि है तो ई, साउंड इज ओरिजिनल साउंड इज अ, लेकिन पढ़ना है मुझे ए, तो उन्होंने उसके ऊपर वो एक्सेंट का प्रोविजन लगा दिया। द सेकेंड वन इज एकोल। एकोल, नाउ पे अटेंशन कि जो लास्ट वाला ई है उस पे एक्सेंट नहीं है, सो साउंड इज गोइंग टू बी अ, एकोल। एल और ई, क्योंकि ई का साउंड अ है, इट बिकेम लॉ, एकोल। स्कूल, स्कूल का फ्रेंच हो गया एकोल। द नेक्स्ट वन इज डिजोले। डिजोले, यहां पर दोनों ई पे एक्सेंट है लाइक बेबे। डिजोले का मतलब होता है सॉरी, एंड वी हैव गॉट अ वेरी नाइस फ्रेंच फ्रेज, je suis désolé, I am sorry. Fine, je suis désolé, I am sorry. And the last one is te. te, h है, बट h हमने पढ़ा था कि उसका साउंड है आश, आ बे से दे अ, एफ जी एंड आश। बट आश का हमने देखा था कि वो जब भी आता है उसके बाद अगर कोई वोवेल वगैरह है तो वो उसी के साउंड में मिक्स हो जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी टे, एंड टे इज टी। सो लेक्सो एग्यू हमने देख लिया, ए साउंड है इसमें, बेबे, एकोल, डिजोले एंड टे। राइट, आई थिंक दिस इज नाउ क्रिस्टल क्लियर, लेक्सो एग्यू। Yes, sir. Okay, okay. So now we'll go to the second one. And second one is l'accent grave. L'accent grave. And as we have discussed, it is going to come on A, E, and U. And it starts from right and tilts to left. दाहिने से बाएं की तरफ झुकता है. This is called grave. अब इसमें समझने की बात है कि नो चेंज इन साउंड ऑफ ए एंड यू। अगर ये ए पे लगा है और यू पे लगा है तो ए और यू के साउंड में चेंज नहीं होता है। फिर क्या चेंज होता है हम देखेंगे। साउंड में चेंज तो नहीं होता है, बट ई के साउंड में चेंज होता है एंड इट बिकम्स ए। ए, सो वो था ए, ये हो गया ए, जो अपना वो क्या बोलते हैं, हर्ष ए एंड दीर्घ ए बोलते हैं हिंदी में। सो दैट वाज हर्ष ए एंड दीर्घ ए। सो दैट इज द रीजन वो एग्यू था, एक्सेंट छोटा, एंड दिस इज ग्राव, बड़ा। फाइन, एंड वी हैव फोर एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज लेव्र। लेव्र मतलब लिप, होठ को बोलते हैं लेव्र। अब देखो वापस, पहले वाले में एक्सेंट लगा हुआ है तो लेव हो गया, लास्ट वाले में नहीं लगा हुआ है तो आर और ई मिलकर के साउंड आ रहा है रॉ, लेव्र। वहां पर ई इज द ओरिजिनल साउंड अ, लेव्र। सेकेंड इज मैनियर। मैनियर, वापस जो पहला ई है दैट इज हैविंग एक्सेंट तो ए हो जाएगा, अगला ई आर के साथ मिलकर के रॉ पे रहेगा। सो मैनियर, मैनियर। थर्ड इज नियस। नियस, वापस वही हो गया, अंतिम जो ई है वो अ है, सी और ई सो, नियस। एंड द लास्ट वन इज अलेव। अलेव, पहला वाला ई पे एक्सेंट नहीं है तो अ, अगले वाले पे है तो लै, अलेव। फिर वापस थर्ड वाले पे नहीं है, वापस अ लैव, अलेव, अलेव। प्यूपिल यानी कि शिष्य, विद्यार्थी। सो लेव्र। Sir, हाँ बताइए। sir, like you have told us C और E में like sound कैसे सॉ हो जाता है सर? वो तो Like अब आगे R A पढ़ेंगे E ना। को रॉ हो जाता है। वो देखो, वो सिंपल है कि कॉन्सोनेंट को साउंड कौन देता है। अगर आप देखेंगे कि ब साउंड में, तो ब में भी आप देखेंगे, अगर आप हिंदी पढ़ा होगा आपने कहीं, तो आधा ब आधा अ लगाते हैं, बा, ब प्लस आ। यानी कि कॉन्सोनेंट में जब तक एक वोवेल ऐड नहीं होगा साउंड चेंज
नहीं होता है। फाइन। तो इन सारे वर्ड्स में अगर आप देखेंगे, जहां भी साउंड, जहां भी कॉन्सोनेंट है, उसके बगल का जो वोवेल है वो दोनों आपस में जोड़ करके एक साउंड निकालते हैं। आर ई रॉ, सी ई सॉ। अच्छा, एक सवाल आपका सही है जो कि मैं भी अभी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नियस में सी में एक्सेंट नहीं है, तो ये सॉ कैसे हुआ? इट शुड बी क। एक्चुअली सी में अगर एक्सेंट नहीं है तो क बोलते हैं, एंड अगर वो एक्सेंट लगा हुआ है नीचे सडील, देन इट बिकम्स सॉ। ये एक सवाल मेरे लिए भी है, मैंने अभी जस्ट आपसे बात करते करते आई हैव पेड अटेंशन दिस, आई विल एक्सप्लोर एंड लेट यू नो कि बट इट इज नियस, Okay, sir. नियक नहीं है, क साउंड नहीं है, नियस है, राइट? सो लेव्र, आर ई रॉ हो गया, एंड दिस वन इज ए, लेव्र। मैनियर, मैनियर, तो ए होता है, ए का आ। सो सॉरी, नाउ आई हैव टू बी आल्सो केयरफुल, इंग्लिश फ्रेंच। सो ए का साउंड क्या है? आ है, आ बे, तो माँ हो जाएगा ये, माँ। सो मानियर, मानियर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इंग्लिश और फ्रेंच में मिक्स करने में। सो इट्स मानियर, मानियर। ओके, सो बिकॉज ए इज आ, माँ, Okay, sir. माँ, और आई क्या होता है? आ बे से दे अ, एफ जे, आश, ई। So manier, manier, and this one is nies because I is e, so nies, and the last one is alev. तो पहला वाला अ आया और अगला वाला ए आ गया, अलेव। अब यही प्रैक्टिस जो है वो मेन चीज है। फाइन, बिकॉज वी आर फुल्ली इनटू इंग्लिश, दिन रात हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं, और व्हेनेवर यू विल कम टू फ्रेंच तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन आपको आएगा ही आएगा। फाइन। So, but I think when we will go for more classes, I am also, you can say I am also revising or recollecting all my studies. Fine. So this is your Okay, sir. accent grave. Fine. This also, this slide also is clear. Now going to the next one. Now this one is a bit, you can say a bit important because ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग है. Now the first one is, it's अ का मतलब एक, हम जब पढ़ेंगे वर्ब, तो वर्ब में हम पढ़ेंगे कि देयर इज अ वर्ब कॉल्ड ए आई। हमने उसमें देखा था, आई थिंक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में, जय, जय करंट थ्रुआ ए, यानी कि आई हैव 43 इयर्स। अगर आपने वो वाला स्लाइड आप याद करेंगे तो ए आई Yes, का sir. मतलब था हैव। तो वो जो मेन वर्ब है वो ए आई है, और वही चेंज करता रहता है कहीं पर वो, सो एज पर टेंस वो चेंज करेगा। वो हम बाद में समझेंगे कि कैसे कैसे वो चेंज करता है। सो अगर सिर्फ पर ए सर वहाँ पे हाँ, ए आई था तो वहाँ पे उसका मतलब एम था ना, आई एम। नहीं 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 नहीं, ए आई का मतलब था हैव। सो जे 43 करके था, 43 इज कैरॉन थ्रुआ, सो 43 मतलब आई हैव 43 इयर्स, मैं 43 इयर्स का हूं, तो मतलब मैंने 43 साल रखे हैं अपने पास में। सो उसका अगर शाब्दिक अर्थ पे आप जाएंगे तो मतलब आई हैव 43 इयर्स, बट व्हेन वी यूज इट, इसका मतलब होगा आई एम 43 इयर्स ओल्ड। बट अगर उस वर्ब पे आप जाएंगे, द मीनिंग ऑफ दैट वर्ब इज हैज, हैव, ए आई। ओके, सो ए इज बेसिकली उसी का एक अलग फॉर्म है, मतलब होता है उसका हैज। लेकिन अगर उसी सर ए, हाँ, एक क्वेश्चन है सर, डाउट हो रहा है। क्या? तो यहाँ पे उस टाइम उस पिछली स्लाइड में वहाँ पे दे के बाद ए आई का मतलब वहाँ पे एम है, और यहाँ पे ए आई का मतलब हैज कैसे समझेंगे सर? अगर आप देखिए तो उसमें एक और मैंने वो आपको दिया था सेंटेंस कि आई एम अ स्टूडेंट, यस सर। उसमें क्या था? एम के लिए क्या यूज किया था बताओ? सुई, यहाँ पर एस एस यू यू आई आई एस। एस। हाँ, आई एम सॉरी, क्या है इंग्लिश उसका, सॉरी फ्रेंच क्या है उसका? je suis लुइस désolé। डिजोले। हाँ, सो एम का क्या हो गया? सुई। तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, एक बार जब हम वर्ब फॉर्म्स पढ़ना शुरू करेंगे कि वर्ब का बेसिक फॉर्म क्या है और कैसे वो टेंस के साथ एंड सब्जेक्ट के साथ वो चेंज करता है,
देन विल कम टू नो कि एक्चुअल वर्ब क्या है एंड हाउ इट हैज चेंज्ड। वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो पूरा का पूरा एक कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि अगर आपका ए आ रहा है विदाउट एनी एक्सेंट तो उसका मतलब है हैज, और अगर ए आ रहा है विथ ग्राव एक्सेंट इसका मतलब वी आर यूजिंग इट एज प्रीपोजिशन टू, एट, इन। अब ये कंफ्यूजन है कि इन तीनों के लिए देयर इज ओनली सिंगल वर्ड इन फ्रेंच, अ। जबीत अ मुजफ्फरपुर, अगर आप जाएंगे उस पे इंट्रोडक्शन पे आप जाएंगे तो मैंने बताया था, दिखा था हमने जबीत, ज प्लस HABITE, जबीत, और ए था उस पे ग्राव एक्सेंट था, जबीत अ मुजफ्फरपुर, आई लिव इन मुजफ्फरपुर। फाइन। तो जब भी ए के ऊपर लगा हुआ है एक्सेंट मतलब कि वो प्रीपोजिशन की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। हमने देखा था और कि व्हेन आई एम टेलिंग दैट वी आर गोइंग टू मीट ऑन वेंसडे और मंडे और टुमारो, राइट, तो अ डेमो, अ मार्दी, याद आया, यस सर। अभियांतो, अभियांतो, वहां भी आप अगर देखें तो ए के ऊपर में वो एक्सेंट होना चाहिए अगर सही बात मायने में तो, बिकॉज इट्स वर्किंग एज अ preposition. We will meet on so and so day. To, at, to, at, in, on, preposition के लिए अ इस्तेमाल होता है। इट्स कॉमन प्रीपोजिशन, जैसे इंग्लिश में अलग अलग प्रीपोजिशन है वहां पे अ है। फाइन। और भी थोड़े बहुत हैं जो कि हम सीखेंगे, राइट। जैसे कि एक था पुई, में देखा था PUIS, पुई, फॉर, दे पुई। तो ये हम अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ग्राफ का कैसे कैसे डिफरेंस है। सो विदाउट एक्सेंट इट इज हैज, एंड विथ ग्राफ एक्सेंट इट इज वर्किंग एज अ प्रीपोजिशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ला। तो हमने देखा था कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ला। अगर हमें मैस्कुलिन पे यूज करना है द, तो LE था। इफ आई हैव टू यूज इन फ्रंट ऑफ और बिफोर फेमिनिन तो LA था। एंड इफ इट इज हैविंग नेक्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ वॉवेल तो हमने देखा था कि ई या ए गायब हो जाएगा एंड वन एपस्ट्रफी विल कम। जैसे कि लैक्सो, लैक्सो में क्या था, लैक्सो में क्या है, ल एक्सेंट। अगर हम देखें तो LE, ल एक्सेंट, बट बिकॉज E एंड A, two vowels cannot come side by side, so E will go away, एपस्ट्रफी वहां पर आ जाएगा, लैक्सो। तो ये जो ला है वो द है, एंड इसमें अगर हमने ए पे लगा दिया ग्राफ इट विल बिकम देयर, मतलब वहां। फाइन। और मैंने उसका एग्जांपल दिया है जो कि बहुत ही शानदार वर्ड है, which we keep on using in English also, and while talking also we use wala, wala। वला का मतलब ओ तो क्या हुआ अचानक, सपोज इफ यू आर गोइंग समवेयर एंड अचानक आपने देखा कि कोई दूर कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, राइट, या दूर कोई बहुत अच्छा सीनरी है, तो आप बोलेंगे अपने दोस्त को वला, यानी कि वहां पर देखो, एंड देन यू विल टेल योर सेंटेंस, राइट। तो ये आपका हो गया ला विथ विथ एक्सेंट, इट्स देयर, एंड विदाउट इट इज अ फेमिनिन द। ठीक है। सो एक हो गया आपका सिंगल ए में हो गया, एंड देन एक ला में इसका इस्तेमाल होता है। नाउ द थर्ड वन इज OU। इसमें हमने क्या सीखा था कि अगर ई पे आएगा तो साउंड चेंज होगा, अगर ई पे नहीं आता है तो साउंड चेंज नहीं होगा। सो OU with accent, OU the next one, मतलब the first one without accent, the next one is with accent, दोनों का pronunciation is ऊ, ऊ। एंड ऊ का मतलब अगर एक्सेंट नहीं है तो और, राम ऊ श्याम, यानी कि राम और श्याम, राइट। और अगर उसके ऊपर में वो एक्सेंट ग्राफ लगा हुआ है देन इट इज वेयर, ओके, वेयर। एंड ओनली वन एग्जाम्पल, यू के ऊपर लग करके अगर ये शब्द में आता है तो उसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल फ्रेंच में है, जहां तक मैंने एक्सप्लोर किया सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ऑन यू। फाइन। तो ये एक समझने के लिए है
कि अगर ए पे आया तो प्रीपोजिशन, अगर ला पे आया तो देयर, एंड ऊ पे आया तो वेयर। ये 3 है। उसके अलावा ई का हमने समझ लिया कि ई में ये ए हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आई हैव गॉट फ्यू phrases also for you. In every class I try to give you some phrases. उससे क्या फायदा होगा कि at least you can do the normal talking in French, the normal communication. Okay, and जब हम verb form सीखेंगे, जब हम person सीख लेंगे, first person, second person, third person में कैसे होता है, tense क्या होता है इसमें, then we will start framing sentences, right? वो मैं अभी उस पे नहीं जा रहा हूँ. And the first one is bonjour or tu. Tous is tu. Bonjour or tu. Tu का मतलब all. So good morning to everyone. Good morning to all is bonjour or tu. Fine. दूसरा है phrase cetace pour aujourd'hui. 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 Cetace वापस वही है, टी और ए आपस में मिल जा रहा है. Cetace. Pour is again a preposition for. Cetace pour aujourd'hui. Aujourd'hui का मतलब होता है today. And tomorrow का we have learned demain. अब yesterday का again I have to explore because मुझे भी उतना अभी याद नहीं है. But now we have learned two things. We have learned today aujourd'hui and tomorrow is demain. ये दो हमने सीख लिया है. धीरे करके हर क्लास में हम कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे and we will complete all our word power. Don't worry for that. Yes के लिए है we, O-U-I लिखते हैं but we pronounce it we, and no is no. जो लास्ट का n है वो silent है. It's no only. We, no. Now the third one is fear. Fear. इसमें दोनों का दोनों जो L है वो साइलेंट है. सीधा F, I और E से औ का साउंड होता है. Fear मतलब गर्ल. एंड garçon, garçon is boy. And I think I missed to tell you this next one, that is s'il vous plaît. S'il vous plaît का मतलब होता है please. Okay, and you have heard something called RSVP. बहुत ही कॉमन है इंग्लिश में. whenever we write a letter or a notice, and if we write at the bottom RSVP, उसका फुल फॉर्म किसी को मालूम है या उसका मतलब किसी को मालूम है? आउट ऑफ बोथ ऑफ यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RSVP? एनीवन? both are there or you have gone? Forgot, sir. अच्छा, you forgot. Okay, Shivangi, do you remember RSVP? No, sir. नो. सो RSVP का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर किसी को आप पूछेंगे ना RSVP, तो लोग लिखते हैं बट दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग. वो लिखते इसलिए हैं ताकि आप मेरे चिट्ठी का या नोटिस का जो भी मैं आपको भेज रहा हूँ उसका sir, as soon as possible, sir. as soon as possible. Urgent. Very good, very good. So the meaning of RSVP is कि आप इसका रिप्लाई as soon as possible कर दीजिएगा. But RSVP is a complete French phrase जिसका मतलब होता है R से répondez. Répondez is in English respond. Respond का है répondez, and then s'il vous plaît यानी कि reply please. So we are giving a stress, reply please, répondez s'il vous plaît. So RSVP. S'il vous plaît का SVP and répondez का RSVP. Okay, the next one is de rien. De rien हम जब use करते हैं when somebody is telling me merci beaucoup, तो हम बोलते हैं de rien, means you are welcome, it's okay, you are welcome. और de rien जो है वो थोड़ा सा informal है, and formal के लिए है je vous en prie. Je vous en prie. ठीक है? Do not go for the complete ये sentence कैसे बना, क्या बना. We will discuss all these things when we will learn the tense and the structure of a sentence. अभी सिर्फ phrase के लिए informal de rien and formal is je vous en prie. You are welcome.
सो जब भी कोई बोलेगा मेसी बोकू या कोई बोलता है आपको ट्रेबिया, ट्रेबिया मतलब होता है वेरी गुड, एक्सलॉन, एक्सेलेंट, एक्सलॉन, ट्रेबिया, मेसी बोकू, तो आप बोलेंगे यू आर वेलकम, जैसे कि हम बोलते हैं इंग्लिश में. एंड द लास्ट वन इज केल अर, केल अर एतिल. एतिल क्यों हो गया? बिकॉज टी एंड आई है तो जुड़ गया आपस में, एतिल. केल अर एतिल, व्हाट टाइम इज इट? केल अर एतिल, केलर एतिल, Keller Ethel. That is, what time is it? Fine. So why I'm giving you phrases? Because you need to, I think we have classes thrice a week. Sunday, take your time and go through all the PDFs. So you will take hardly half an hour, 1 hour maximum, and you will complete all the revision in one go. The more you will keep on revising, these phrases and these sentences and these words are going to be in your mind for a long time. If you will not revise, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाला छूट जाएगा आपका. So from day 1 to day 6, whatever PDF you have got, whatever phrases and words and sentences we have discussed, keep revising that. Fine. So this is the few phrases and that's it. Today we have discussed this 3, 5 and 9 words and phrases, and we have discussed 2 accents, l'accent aigu and l'accent grave. In next class, we will discuss the last 3 one, trema, circumflex and cedile. Fine. Now tell me, any other doubts you have in this, what we have discussed, or it was okay? You got it? Okay, Kriti? Got it, sir. Okay. Got it, sir. Got What it. about you, Shivangi? So, okay? Yes, sir, it's okay. Okay. The only request I will make again and again that if you are learning French, I will tell you frankly, जो मेरे साथ में हुआ वो आपके साथ भी होगा. Till the time you will be learning, आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा. The moment you will go for a gap, suppose अब आपने फ्रेंच पढ़ना बंद कर दिया and then 1 year passed, 2 years passed, 3 years passed, धीरे धीरे करके आप भूलना शुरू हो जाएंगे. कॉमन है. बट अगर आपने कहीं पर इस पीडीएफ को संभाल के रखा, एंड आई विल से दैट डू नॉट स्टॉप इट. अगर आपका क्लास बंद भी हो गया, आपने क्लास छोड़ भी दिया, बट स्टिल एवरी वीक और एवरी फोर्टनाइट और एवरी मंथ कीप रिवाइजिंग. एक बार खाली सिर्फ खोल करके आई विल जस्ट गो थ्रू इट. तो क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू वेन एवर यू विल ट्राई टू रिकॉल इट. अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी बिग मिस. I have studied French for 300 hours. 300 घंटे मैंने पढ़ाई किया, यानी कि 2 घंटे का क्लास था, मैंने 150 दिन पढ़ाई किया. That's the reason कि जब मैं रिकॉल करता हूँ, it comes fast. But still मेरे लिए सब कुछ याद रखना impossible है, because I finished in 1998 and now it is 2021. 23 साल का गैप है. So because of that much of gap, और मैं use नहीं करता हूँ, I use only English, so there's a gap. But because I studied for a long time, तो recall करना मेरे लिए आसान है. Suppose if I will join any company or any place जहाँ पर कि French बोलना पड़ता है, I will take only maybe 1 or 2 weeks or 3 weeks to brush up myself. तो ये तभी हो पाएगा when you are revising now. So keep on revising and keep on you can say discussing with others. जो भी आपके भाई बहन हैं या दोस्त हैं, उनसे आप ये सारे phrases and words discuss कीजिए, share कीजिए. Fine, Kriti and Shivangi, thank you very much. Now we will Thank you, sir. meet on Wednesday, and Wednesday my plan is to go for counting 1, 2, 3, 4, 5, 6. We'll try to understand how counting happens in French language. Chalo then, bye bye, Okay, sir. take care and good day. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Bye. sir. Bye.